Now, we started this session with this very saying that is displayed on your screen that says the English language is a work in progress, have fun with it. Now, what does this mean? It only means that at no point of time in my life would I be able to say this with confidence that I'm done with my English language. So, no matter how much you progress, the work would still remain unfinished, is all that it means. So, don't worry too much about English language because आप कितना भी इसको करोगे तो ये खत्म कभी नहीं होगा. You would never be able to conclude that you're done with it. And following this itself, when we go further, it also says the only normal way to begin speaking in a new language is to begin speaking badly. So I'm sure many of us are struggling with this issue of not being able to talk properly or making grammatical errors, mistakes here and there, having this fear in our mind that we will become a laughing stock if we talk publicly, if we ask questions in class. So we're not worried about the quality of question, but more about the grammatical error that we might commit, and therefore we tend to hold ourselves back. I believe if any of these things are happening, even if you're making some mistakes, that is all fine because you're learning a new language. और जब कोई नई चीज हम सीखते हैं तो mistakes होती है. तो जो लोग इस चीज को रियलाइज नहीं करते और वो आप पर हंसते, ये उनकी गलती है, ये उनकी नासमझी है, ये उनका लिमिटेशन है थॉट का. So don't hesitate and speak as much as you can in the language because that is how you develop command over a particular language. Now, starting with this very area of our chat, which is VA, verbal ability. तो VA में आप बताएं मुझे सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज में VARC में कितने क्वेश्चंस हुए थे कैट में 19 में? हाउ मेनी क्वेश्चंस हुए थे? VARC किसी ने होमवर्क किया है? कितने क्वेश्चंस थे? 34 करके बोल सकते? Sorry? 34. 34 questions. Correct. 34 questions. 34, right. So, para jumbles पे कितने questions होंगे? 4 questions. 4 questions were on para jumbles, 3 questions were on odd one out, and 3 questions were on summary. तो हम क्या करेंगे, अभी ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है इसमें टुडे वी आर डिस्कसिंग para jumbles of slot 1. But however, I would not assume that you already have a knowledge and awareness of this topic. So I would be spending some time on understanding basics of para jumbles. तो हम देखेंगे इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए what are few things that we should keep in mind so that we're not committing any errors. दूसरा चीज है कि ये आज हम जो डिस्कस करें दिस इज फ्रॉम स्लॉट 1 ऑफ योर कैट 19. सिमिलरली स्लॉट 2 में हमको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसमें 7 पैरा जंबल्स के रहेंगे. So in our following session, which will happen on next weekend, we will cover up those remaining questions of slot 2 para jumbles. Following that, I intend to also take one class on summary. So para summary के ऊपर हम एक class लेंगे जिसमें we will cover up the basic theory that is required to be understood and questions of slot 1 and 2 together because उसमें 3 questions ही है. So what we will do is we will incorporate those 6 questions of slot 1 and 2. Plus from my side, I will add some 4 another questions of para summary from the past year's CAT paper, the actual questions from the CAT paper. So this is going to be amalgamation of slot 1, slot 2 and some questions from past 4-5 years of CAT. So इस तरह से हम 10 से 12 क्वेश्चन का एक सेशन बनाएंगे which will be on para summary. So para summary हमारा हो जाएगा. para jumbles हम आज कर रहे हैं. para jumbles में ही हम para jumbles और odd one out हम दोनों एड्रेस कर रहे हैं बिकॉज ऑड वन आउट में जब आप बोलते हो कि एक चीज है जो इसमें फिट इन नहीं हो रही है तो मुझे ये देखना होगा कि बाकी 4 कैसे मुझे लगता है कि फिट इन हो रहे हैं. सो इट इज अगेन बीन एबल टू फॉर्म अ पैराग्राफ आउट ऑफ दोज रिमेनिंग वंस सो दैट यू कैन डक वन आउट ऑफ दोज 5 ऑप्शंस. ठीक है. सो अब पैरा जंबल्स में हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं. सबसे पहले पैरा जंबल्स में आप देखोगे देयर विल बी 4 सेंटेंसेस गिवन, A B C D मार्क्ड रहेगा. दे आर जंबल्ड एज द नेम सजेस्ट और इसको रीअरेंज करके हमको मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है. ठीक है. इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले साल कैट 19 में 4 ऑप्शन वाले ही सेंटेंसेस आए थे और जब 4 ऑप्शन वाले सेंटेंसेस आते हैं तो हमारे लिए काफी अच्छा हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है because the number of options that I can form using 4 sentences would be how many?
कितने ऑप्शंस बन सकते हैं 24. अगर 24, वेरी गुड। 24 कैसे है हमारा? 4 factorial sir. 4 फैक्टोरियल, वेरी गुड। 4 फैक्टोरियल मतलब 4, 3, 2 एंड 1, सो 24 हमारा मल्टीप्लीकेशन आ रहा है इसका। सो मेरे पास 24 ऑप्शंस होते हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन है जो करेक्ट होगा। अब इसमें देखिए, अगर मुझे 5 सेंटेंसेस वाला पैरा आ जाता है, ए बी सी डी ई, अब टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हमारे कितने हो जाएंगे? 120. 120, लवली। सो ये 5 फैक्टोरियल हो गया। सो 5 4 आर 20, 23 60 एंड 62 120। सो 120 ऑप्शंस हमारे हो जाते हैं। सिर्फ एक ऑप्शन अगर मैं और बढ़ा देता हूं, उसमें सेंटेंस बढ़ा देता हूं, तो मेरे ऑप्शंस 24 से जंप करके 120 होते हैं, मतलब 5 टाइम्स मोर इंट्रिकेट, क्योंकि उतने सारे ऑप्शंस मुझे ओवररूल करने पड़ेंगे। सो अच्छी बात तो ये है लेकिन कि हमको 120 ऑप्शंस के साथ स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा शायद। और 4 सेंटेंसेस लास्ट ईयर आए थे, मैं अज्यूम करता हूँ कि इस बार भी 4 सेंटेंसेस आएंगे। सो लेट अस ऑल प्रे टुगेदर टू द गॉड कि हमको 4 सेंटेंस वाला ही आना चाहिए पैरा जंबल, ना कि 5 वाला आए। फर्दर देखिए, अगर इसमें वेरिएशन से लाते तो क्या मिल सकता है? इसमें आपको फर्स्ट सेंटेंस फिक्स, लास्ट सेंटेंस फिक्स और बीच के 4 सेंटेंस जंबल्ड रहेंगे। This will make your job little easier in terms of you don't have to identify what will be my opening sentence or what is my topic. Topic already उसने तुमको दे दिया है। अब हमको करना ये है कि टॉपिक को आगे लेकर जाना है। जब भी हम राइटिंग देखते हैं किसी भी ऑथर की, तो एक चीज हमको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, दैट ऑथर्स विल राइट in a progressive manner. What do I mean by writing progressively? It means that they'll go on building their arguments from the point of time where they start building argument, they'll take it further from there. So इसमें generally reverse tracking नहीं होता है, reverse references नहीं होते हैं, is what we do. ठीक है? So यहाँ पे first fix है, sixth fix है. Sixth could be your conclusion of the entire discussion. तो अगर मुझे पता हो रहा है कि मेरा ओपनिंग क्या हो रहा है और मेरा कंक्लूजन कहाँ जाने वाला है, तो हमको ऑर्डर को अरेंज करने में आसानी होती है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, सपोज कि मैं कोई पर्टिकुलर ऐसा डिस्कशन इनिशिएट करता हूं जिसके प्रोज एंड कॉन्स बोथ है, बट एट द एंड जो 6th वाला सेंटेंस है, दिस इज टॉकिंग फॉर द टॉपिक, मतलब ये उसके प्रोज को हाईलाइट कर रहा है, सेइंग दैट नो मैटर व्हाट इट इज, बट प्रोज डेफिनेटली आउटवे द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द टॉपिक। अगर ये चीज आती है तो कहीं ना कहीं मुझे ये पता चलता है कि एबीसीडी में जब मेरे पास दोनों व्यू पॉइंट होंगे, पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, तो मुझे कैसे उसको बिल्ड करना है ताकि मेरा कंक्लूडिंग सेंटेंस वुड इंसिडेंटली से दैट डिस्पाइट ऑल दिस इट स्टिल आउटवेज द बेनिफिट। तो ये हमको बड़ी यहाँ सहूलत हो जाती है अगर आपका फर्स्ट और सिक्स्थ हमको फिक्स मिलता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे कि फर्स्ट हमको फिक्स मिल सकता है और 5 सेंटेंसेस आपको टॉगल रहेंगे, यू विल हैव टू रीअरेंज दैट। And apart from all this, you would get something like odd one out. इसमें you'll be given 5 sentences, one would be odd one out. So 4 sentences है जो लॉजिकल पैराग्राफ बनाएंगे, एक कोहेरेंट होल बनेगा जिसका, बट एक सेंटेंस रहेगा जो वहां फिट इन नहीं हो रहा होगा। सो ऑब्वियस सी चीज है यहाँ पे कि ये जो वन ऑड वन आउट होगा, they'll tend to confuse you by citing out this 5th sentence also, which will look similar to the 4 ideas, not necessarily in the terms of meaning, but in terms of reiterating certain words that you find there in the other sentences also. एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे हमारे पास पैरा जंबल्स में ये होता है कि कई बार हमको सेंटेंसेस ही नहीं समझ में आते कि दिया क्या है। You are not able to interpret the meaning of the sentence that is given to you. So ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने होता है पैरा जंबल्स में। तो हमको यहाँ पे ये कोशिश इसीलिए करनी पड़ेगी, whenever you reading, you have to read critically, you have to read carefully. आप कैजुअल रीडिंग ना करें, एक अंदाजा ना लगाए पढ़कर कि शायद ऐसा कुछ बोल रहे हैं, उसको ठीक से पढ़िए और उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, तभी आप इसको ठीक से अरेंज कर पाओगे। ठीक है, सो नाउ गोइंग फर्दर, टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। तो टाइप्स ऑफ पैराग्राफ में देखिए, या तो ये स्टैंड अलोन पैराग्राफ हो सकता है या फिर दिस बी अ पार्ट ऑफ अ होल पैराग्राफ। मतलब कोई एक बड़ा पैराग्राफ होगा 10-12 सेंटेंसेस का, तो मेरे पास ये लिबर्टी है कि मैं उसमें से कोई 4 सेंटेंस एक्सट्रैक्ट कर लूं, कोई मतलब लाइन से, वन आफ्टर द अदर। सो आई कैन पिक आउट एनी पोर्शन ऑफ दिस बिगर पैराग्राफ एंड प्रेजेंट इट टू यू एंड से ओके चलो अभी तुम इसको अरेंज करो। जब पार्ट ऑफ अ होल हमको मिलता है
तो अब आप सोचोगे कि सर अगर हमको उसका पहले क्या हुआ नहीं मालूम, बाद में क्या होगा नहीं मालूम, बीच में से अगर कुछ उठा के दे दिया तो हमको कैसे पता चलेगा? नाउ this is going to be a tricky part of your paper, and what you will require to do here is कि आपको इसका लॉजिकल फ्लो बनाना पड़ेगा. आइडिया शुड बी कंसिस्टेंट विथ ईच अदर. कंसिस्टेंट का मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं किसी चीज के बारे में बात करूं तो मुझे देखना कि मेरा नेक्स्ट सेंटेंस उसको फर्दर इलाबोरेट करेगा. एकदम हम एक पॉइंट देंगे, वो पॉइंट को छोड़ देंगे, फिर कुछ बोलेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर पहले पॉइंट की बात करेंगे, फिर दूसरे पॉइंट की बात करेंगे. इस तरह की राइटिंग नहीं होती. तो जनरली जब कोई एक चीज आप मेंशन करोगे, यू वुड प्रोग्रेसिवली टेक इट फर्दर. ठीक है. सो पार्ट ऑफ अ होल अगर होगा तो मुझे कंसिस्टेंसी ऑफ माय आइडियाज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि मैं मेक एंड ब्रेक नहीं कर रहा हूं आइडियाज को. एक कंसिस्टेंसी उसमें मेंटेन होनी चाहिए. एंड स्टैंड अलोन का मतलब ये होता है, पैराग्राफ का मतलब ये अपने आप में पूरी स्टोरी होगी ऐसा नहीं है, लेकिन किसी एक एस्पेक्ट के बारे में हम जो बात करेंगे वो कंटेंट आपका पूरा उस पैराग्राफ में आ जाएगा. ठीक है. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं. So you got this excerpt from a very popular story. Few hunters came into the forest and took the lion with them. Soon the mouse walked past and noticed the lion in trouble. The lion was struggling to get out and started to whimper. They tied him up against a tree. क्या होगा इसका ऑर्डर अगर हमें इसे अरेंज करना है? ADCB. ADCB. ओके. ADCB. किसी को ये लगता है कि ये ADBC होगा? ADBC हो सकता है? Can be. Can be? No sir. No sir. ADCB. Why not? Why not BC? Why CB? So because it connects, both sentence connect each other. Like first lion was struggling to get out, and then he soon saw then mouse walked past and noticed the lion. If mouse Okay. would walk past and notice the lion, then lion would have asked mouse to get him free. Neither he would be struggling. Correct. See, I think you got the line correct. यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं soon the mouse walk past and notice the lion in trouble जब बोलता हूँ, मेरी नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेक्टेशन होती है कि अब माउस क्या करेगा, बिकॉज माउस ने ऑब्जर्व कर लिया है, माउस ने देख लिया है, नोटिस किया है कि लायन ट्रबल में है. So naturally my next expectation would be to understand the plan of action that mouse would execute, instead of leaving that aside there and saying lion was struggling to get out and started to whimper. It will break the flow of the story. So इसलिए ये इस तरह से नहीं हो सकता कि ADBC. It will have to be ADCB. जहाँ पे soon when mouse walked past and noticed the lion in trouble, उसके बाद उसने क्या किया is what would then be narrated by the author. So ये हम बात करें जब हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव राइटिंग की, कि बैक रेफरेंसेस नहीं होगा. लायन को बीच में ही छोड़ दिया, ट्री को बांध के, माउस ने उसको देख लिया, फिर हमने बोला लायन स्ट्रगल कर रहा था, ऐसा नहीं होगा. लायन को बांध दिया ट्री को, लायन स्ट्रगल कर रहा था, माउस वहां से गुजरा तो उसने उसको देखा, अब माउस कुछ करेगा. So that is how the story would progressively go on building. So this is what we need to keep in mind when we're looking at building paragraph. Okay, clear है? Okay. Nupur, आपका mic on है it seems, and some kind of spurious noise is coming. Okay, then paragraph जब हम देखते हैं तो I can see one of the two types, one analytical या argumentative. Analytical paragraph का structure कैसे होगा? एक introduction होगा किसी point का, किसी topic का, उसके supporting ideas होंगे, और finally उसका conclusion होगा उस चीज के बारे में कि ये अच्छा है, नहीं है, क्या होना चाहिए. So it could be say talking about a reservation. So they might introduce the idea of reservation, then have certain points mentioned there to support
the reservation, or if they are against a reservation, it would be about that. And then finally, there'll be a conclusion. Or I might have a neutral start on reservation, have certain ideas for and against it, and finally a conclusion. So ये हो जाएगा हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ, बिकॉज हम क्या करेंगे, ये पैराग्राफ में जो पॉइंट दिए रहेंगे इसको एनालाइज करेंगे और बेस्ड ऑन दैट हमारा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. दूसरा होता है आर्ग्यूमेंटेटिव. आर्ग्यूमेंटेटिव में क्या होगा, मेरा एक ओपिनियन रहेगा. आई ऑलरेडी हैव अ प्रिजम्पशन ऑन सर्टेन थिंग कि ये चीज मेरे हिसाब से सही है या गलत है, तो वो एक आर्ग्यूमेंट, एक अपना ओपिनियन में पेश करूंगा. फिर नेचुरल सी बात है कि क्योंकि मेरा ओपिनियन है, आई वुड बी प्रोवाइडिंग सर्टेन सपोर्टिव आइडियाज which will lead you to believe that ये चीज सही है. और वो जब तुम कन्विंस हो जाते हो कि हाँ मैंने जो बोला ये सही है, in light of these examples, these arguments, then I will restate that idea again. So ये हो जाता है आपका argumentative. और वैसे भी जैसे वर्ड सजेस्ट कर रहा है, आर्ग्यूमेंट तब होगा जब ओपिनियन होगा एक हमारा. अगर मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं और आप जो बोल रहे हो उसी के साथ मैं हाँ हाँ करे जा रहा हूं, तो आर्ग्यूमेंट होगा ही नहीं. बट ओनली व्हेन आई कॉन्ट्राडिक्ट यू would then rise argument, right? तो इसलिए यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा, आर्ग्यूमेंटेटिव में एक पर्टिकुलर ओपिनियन के साथ ऑथर आगे बढ़ता है और वो उसको सपोर्ट करने के लिए आइडियाज देता है, और फाइनली फिर आपको रीआइटरेट करके बोलेगा कि बॉस देयरफॉर इट इज लाइक दिस. वो अपने ओपिनियन को रीजस्टिफाई करेगा, रीएस्टैब्लिश करेगा. तो ये हमको देखना पड़ेगा कि मैं एक पैराग्राफ जब देख रहा हूँ तो किस तरह का पैराग्राफ हमारे सामने है, सो दैट उस हिसाब से या तो मुझे कंक्लूजन ड्रॉ करना है या रीस्टेटमेंट करना है. ठीक है. अब यहाँ देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है. जब 4 सेंटेंसेस वाला पैराग्राफ मुझे मिल रहा है, इफ आई एम एबल टू फॉर्म अ लिंक ऑफ 2 सेंटेंसेस, अगर 2 सेंटेंसेस का पेयरिंग मेरा हो जाता है तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता है. बिकॉज 2 सेंटेंसेस इफ आई पेयर इट, then I know remaining 2 sentences either will form a pair amongst themselves or they'll be left loose. If they are left loose, तो एक सेंटेंस ऊपर आएगा, एक सेंटेंस नीचे आएगा. अगर पेयर बनेगी तो दोनों एक के बाद एक आएंगे. अगर पेयर नहीं बनती है तो एक ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा. तो मेरे पास जो नंबर ऑफ ऑप्शंस हो जाते हैं वो काफी लिमिटेड हो जाते हैं टू बी एबल टू रीच द राइट कंक्लूजन. इसलिए पेयर फॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है आपका पैरा सॉल्विंग का. ठीक है. सो अब जब मैं पेयरिंग देख रहा हूं, देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स बेस्ड ऑन व्हिच आई विल इवैल्यूएट हाउ द पेयर्स कैन बी फॉर्म्ड. सो वो एस्पेक्ट्स हम यहाँ देख रहे हैं. जैसे एक है मेरा कंटेंट लिंक, मैं इसमें देखता हूँ. दूसरा होता है स्ट्रक्चर लिंक. ये दो एस्पेक्ट्स को यूज करके हम पेयरिंग करते हैं और यही हमारा सेंट्रल आइडिया रहेगा ऑफ सॉल्विंग पैरा जंबल सेंटेंस, पैरा जंबल क्वेश्चंस. सो कंटेंट लिंक जब मैं देख रहा हूँ, इसके अंदर व्हाट इज इट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड इज, क्या कॉज इफेक्ट मुझे दिख रहा है, क्या आइडिया एलाबोरेशन दिख रहा है, क्या आइडिया एंड एग्जाम्पल दिख रहा है, डू आई हैव समथिंग फ्रॉम जेनेरिक टू स्पेसिफिक, डू आई हैव अ क्रोनोलॉजी फॉलोइंग. सो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर हम फिर देखेंगे कि ओके ये 2 सेंटेंसेस मुझे दिख रहे हैं कि साथ में जाएंगे डेफिनेटली बेस्ड ऑन वन ऑफ दीज आइडियाज. तुमको किसी को जस्टिफाई नहीं करना है कि ये दोनों सेंटेंसेस मैंने आइडिया एग्जाम्पल के बेसिस पे लिंक किए. दिस इज जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग कि ऐसी चीजें होती है, तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो अब पहले हम देखते हैं कि कॉज इफेक्ट क्या होता है. ठीक है. कॉज इफेक्ट के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय कॉज इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, there are 2 sentences. One says I gave her a rose yesterday. 2 says my cheek is red and swollen. इसमें क्या कॉज है और क्या इफेक्ट है? What is the cause? Cause is I gave her a rose yesterday, and effect is my cheek is red and swollen. Exactly, बिल्कुल. अब इसने बंदे ने रोज तो दे दिया, उस समय सोचा नहीं. Now the cheek is red and swollen. We really don't know why and how. अब ये थप्पड़ से ही हो गया या सैंडल पड़ा या उसको पत्थर से उसकी पिटाई हुई. We really don't know what happened in between. बट कुछ एक चीज, एक एक्शन ऐसी हुई जिसके वजह से कुछ इफेक्ट क्रिएट हुआ. तो ऐसी चीजें हमको लाइफ में देखने मिलेगी. जब हम एक पैराग्राफ भी देखेंगे तो मुझे दिखेगा बिकॉज ऐसा है इसलिए कुछ ऐसा होता है. वन थिंग इज लीडिंग टू द अदर थिंग, सो दैट इज व्हाट वुड बिकम माय कॉज एंड इफेक्ट पेयर. तो कॉज इफेक्ट पेयर हमको ऐसे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे दूसरा सेंटेंस हम यहाँ देखें, इट इज रेनिंग आउटसाइड, आई एम वेयरिंग अ रेनकोट. It is raining outside is cause I am wearing a raincoat.
is effect. Effect. Yes, it is the effect of it. In effect of it raining outside, I am wearing a raincoat. It cannot be the other way round. क्योंकि मैं रेनकोट पहन रहा हूं इसलिए बाहर बारिश हो रही है, इस तरह से ये इफेक्ट नहीं आ सकता। सो कॉज इफेक्ट का ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, और क्योंकि वो ऑर्डर चेंज नहीं होता है इसीलिए सेंटेंस का ऑर्डर भी जो रहेगा उसी तरह रहेगा, पहले कॉज रहेगा फिर हम उसका इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो अगर हम दो पेयर में ये देख लेते कि कुछ एक तालमेल है, वन इज लीडिंग टू द अदर, वी कैन फॉर्म दैट स्ट्रॉन्ग पेयर एंड वी कैन से ये दो तो नो मैटर व्हाट साथ में ही आएंगे। अब बचे हुए दो सेंटेंसेस को हमको आगे पीछे अरेंज करना है। ठीक है, सो कॉज इफेक्ट क्लियर है। अब हम आइडिया इलाबोरेशन देखते हैं। आइडिया इलाबोरेशन में से you would have something like this. China is responsible for COVID spread across continents. Wuhan in China is where the story began. Now when I am saying China is responsible for COVID spread across continents, यहाँ पे मेरे पास दो चीजें हैं जब मैं इलाबोरेशन की बात कर रहा हूं, या तो मैं चाइना की बात करूं या मैं कोविड की ही बात करूं कि कैसे ये स्प्रेड हुआ है अक्रॉस कॉन्टिनेंट। So I can get into the details of those extent of spread of COVID in various continents, or I could just take up the China thing and start talking about it further. So यहाँ idea elaboration में मेरे पास दोनों option है। I have opted for talking about China because अभी China सभी के interest का matter बन रहा है, so let us talk about China more. So China is responsible. Wuhan in China is where the story began. It is believed to have spread from the bats. Experts, however, say it was developed in the virology department of China. तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया which has got something to do with China and COVID. Further, what we doing is we are elaborating on that idea. We're talking about what happened in China. Why are we saying, it is the country that is responsible for spreading COVID, and then we're also talking about COVID कैसे spread हुआ हम मानते हैं चाइना से। ठीक है, so this is idea and its elaboration. तो जब भी हम देखते हैं तीन चार सेंटेंसेस को तो मुझे एक पता चलता है कि एक सेंट्रल आइडिया है मेरा जिसको इलाबोरेट बाकी के सेंटेंसेस कर रहे हैं। तो अगर वो किसी आइडिया को इलाबोरेट कर रहे हैं तो मुझे ये पता चल जाता है कि मेरा आइडिया ये सेंट्रल है जो पहले आएगा, और ये इलाबोरेटिव सेंटेंस है ये उसके बाद आएगा। सो आइडिया एंड इलाबोरेशन विल आल्सो हेल्प अस टू फॉर्म अ पेयर। उसको हम कोशिश करेंगे आइडेंटिफाई करने की। या दूसरा इलस्ट्रेशन आप देखें, कैंसर इज अ डेडली डिसीज, इट किल्स। ना अब कैंसर के बारे में मैं फर्दर इलाबोरेट कर रहा हूं। इट किल्स बाय इन्वेडिंग की ऑर्गन्स एंड इंटरफियर विद बॉडी फंक्शंस दैट आर नेसेसरी टू लिव। अनट्रीटेड कैंसर कॉमनली कॉजेस डेथ। तो ये हो गया सेंट्रल आइडिया कैंसर एंड उसके इलाबोरेटिव दोनों सेंटेंसेस हमको दिख रहे हैं। तो इस तरह से चीजें होती है। ठीक है, थर्ड हम देख रहे हैं आइडिया एंड एग्जाम्पल। तो जैसे यहाँ पे हम देखें, मेंटल इलनेस सिम्टम्स कैन अफेक्ट इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। ये एक आइडिया हो गया, मेंटल इलनेस सिम्टम्स कैन अफेक्ट इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर्स। तो अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है तो उसके हमारे सिम्टम्स हम देख रहे हैं कि इमोशंस, थॉट्स एंड बिहेवियर में हमको दिख सकते हैं, कैन अफेक्ट दैट। नाउ फर्दर आई एम सेइंग फीलिंग सैड और डाउन, that is emotion, excessive fear or worries. Now this is again about emotions and thought. Withdrawal from friends and activities, this is behavior, are a few examples. तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक आइडिया ली है और उसका एग्जाम्पल उसके आगे हमने दिया है। तो ऐसे मुझे यहाँ देखना पड़ेगा कि क्या मेरा सेकेंड सेंटेंस पहले आके फिर फर्स्ट सेंटेंस आएगा या फर्स्ट सेंटेंस के बाद ही सेकेंड आ सकता है, बिकॉज वो आइडिया एंड एग्जाम्पल है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जनरली एग्जाम्पल्स हम तब देते हैं जब ऑलरेडी आइडिया हमारा डिफाइन हो जाता है, बिकॉज एग्जाम्पल से पॉइंट प्रूव नहीं होता। पॉइंट प्रूव नहीं होता मतलब एग्जाम्पल अलोन विल नॉट हेल्प यू टू बिल्ड आर्ग्यूमेंट्स। So first we will build an argument, and to strengthen your argument or a point of view, you would append an example. So ये हमको यहाँ ध्यान में देना पड़ेगा कि एग्जाम्पल जनरली हमारे आइडियाज को स्ट्रेंथन करने के लिए हम देते हैं, तो ये फॉलो करेगा किसी ना किसी आइडिया को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जेनेरिक टू स्पेसिफिक। जेनेरिक टू स्पेसिफिक का मतलब होता है एक हम जनरलाइज बात करना चालू करते किसी चीज के बारे में,
और फिर धीरे धीरे बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, देन यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग स्मॉल, तो यू स्टार्ट टॉकिंग ऑन अ बिगर लेवल एंड स्टार्ट गिविंग इट डाउन, एक फनल इफेक्ट की तरह ये होता है, और बाद में एक छोटी बात होती है। इसमें दूसरा एक तरीका होता है कि आई कैन स्टार्ट टॉकिंग बीइंग स्पेसिफिक ऑफ समथिंग and saying that it is not just confined to the smaller strata, but look at a bigger picture and still bigger picture and go on a world level, you would still see similar phenomenon. तो इस तरह से भी हो सकता है, but generic to specific is what we would generally adapt when we looking at these things. So इसका example देखिए, जैसे environmental pollution has raised an alarm worldwide. सो हम यहाँ पूरी दुनिया की बात करें और हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें, दो मेन मुद्दे हमारे। एशिया अलोन कॉन्ट्रीब्यूट्स 45% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशन। अब हमने क्या किया, वर्ल्ड लेवल पर से 7 कॉन्टिनेंट्स पे से मैं एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट पे आ गया हूं, विच इज एशिया। सो व्हाट एम आई डूइंग, जेनेरिक से स्पेसिफिक होता जा रहा हूं मैं। एशिया में फर्दर आई एम सेइंग चाइना इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ CO2 एमिशन इन एशिया। तो वर्ल्ड लेवल पे हमने बोला सबसे बड़ा कारणीभूत एशिया है, एशिया में हमने बोला चाइना इज अ कल्प्रिट। चाइना के बारे में फिर हम बोल रहे 70% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग सेटअप इज इन ग्वांगजू। ग्वांगजू में 70% इसका मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। तो जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो नेचुरली हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, नेचुरली हम एमिशंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं आइडियाज कनेक्ट होते हैं। सो हमने स्टार्ट किया वर्ल्ड लेवल से और सारा का सारा ये प्रॉब्लम लाकर ग्वांगजू के सर पे हमने फोड़ दिया, बोला ग्वांगजू जो है ये सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसे होता है कि यू स्टार्ट टॉकिंग एट अ लार्जर लेवल, स्टार्ट गिविंग इट डाउन, ब्रिंग इट टू वन स्मॉल पोर्शन। तो हमको ये देखना पड़ेगा जब हम पैरा कंप्लीशन भी करेंगे तो कि जो लार्जर आइडियाज है पहले वहां से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको धीरे धीरे स्क्यू डाउन करेंगे। ठीक है, अब लास्ट है हमारा क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, जैसे जैसे इवेंट्स हुए होंगे। सो इट कुड बी पास्ट टू प्रेजेंट और इन सम केसेस प्रेजेंट टू पास्ट भी हो सकता है, बट इट हैज टू फॉलो एन ऑर्डर। अभी यहाँ पे देखिए, इसको लगाकर देखिए, बनता है क्या क्वेश्चन। देखो क्रोनोलॉजी की मैंने बात किया हूं तो यहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा कि 1964 में मेरे पास दो डेट्स है, एक मई है एक जून है। तो नेचुरल सी बात है कि हम पास्ट 1947 से आज प्रेजेंट में आ रहे हैं। सो 1947 के बाद में मई 1964 पहले आएगा या जून 1964 पहले आएगा? इन ऑर्डर ऑफ इवेंट्स मुझे भी लेना पड़ेगा। वो इसलिए भी लेना पड़ेगा कि अगर मैं AC लेता हूं, अब आप पढ़ के देखे, लाल बहादुर शास्त्री वॉज इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर ऑन जून 9, 1964। ठीक है, ये जून में इलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, पोस्ट इज डिमाइस इन मई 1964। अब ये जून में सिलेक्ट हुआ था तो मई में मर कैसे गया? इज इट लीडिंग टू कंफ्यूजन और नो? अरे क्योंकि यहाँ पे हिज आ गया ना। अब हिज क्या करेगा, जो मेरे पास लास्ट नाउन जिसकी मैंने बात किया हूं, ये हिज उसको रेफर करेगा। जबकि यहाँ पे हिज हम बात कर रहे हैं नेहरू जी की, हम बात कर रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की यहाँ पे। लेकिन क्योंकि तुमने सेंटेंस का ऑर्डर चेंज कर दिया, अब गए थे नेहरू जी और तुमने भेज दिया लाल बहादुर शास्त्री को, बिकॉज यू चेंज द ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस। सो जून में वो प्राइम मिनिस्टर बने एंड पोस्ट इज डिमाइज इन May 1964. गुलजारी लाल नंदा took his place for a short time. Now this is just not making any sense, and hence my order would be DBCA. गुलजारी लाल ने नेहरू जी की पोजीशन ली थी फॉर अ शॉर्ट टाइम और जून में लाल बहादुर शास्त्री इलेक्ट हो गए प्राइम मिनिस्टर। सो जब क्रोनोलॉजी की हम बात करेंगे तो वी विल अगेन हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल when we looking at these finer details कि क्या वो दिखा रहा है, किस समय क्या हुआ है। ठीक है, so casual reading से बाहर आ जाओ, you have to read things critically, ये चीज को ध्यान में रखो। अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आपका पूरा पैरा जंबल का बेसिस आप समझ के चले, ये स्लाइड है। अगर आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले ले, अगर आप चाहे क्लिक कर ले, आपको जॉट डाउन करना है, व्हाटएवर। नाउ हियर द पॉइंट इज, ये स्ट्रक्चर लिंक्स हम देख रहे हैं। स्ट्रक्चर लिंक में क्या है कि जैसे नाउन प्रोनाउन लिंक हम देखेंगे,
सो अगर कहीं पर नाउन यूज हुआ है तो हमारी लैंग्वेज कहती है कि घड़ी घड़ी मुझे नाउन यूज ना करना पड़े, इसलिए हम उसको प्रोनाउन से सब्स्टिट्यूट करते हैं. So if in case I come across he, she, they, it, etc., then I would immediately start searching for कि ये किस चीज को रेफर कर रहा है, ये नाउन कौन सा है जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे he, she, they, it से. So the moment you read this, you searching for noun. तो ये हमको पेयरिंग में बहुत मदद करता है, ठीक है, बिकॉज मेरा सेंटेंस सीधा he, she से चालू नहीं हो सकता, बिकॉज आई रियली वुड नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट whom और what. ठीक है. दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये होगा जो कोई पर्टिकुलर चीज को दर्शा रहा है, दिस, दैट, दीज, दोज एक्सेट्रा. सो इसमें क्या होगा, कोई पर्टिकुलर चीज की हम बात करें तो भाई दिस इज व्हाट. So this could be the table, the laptop, this computer, this friend of mine, this pet of mine. It could be anything. So ये this क्या है, ये जानने के लिए हमको फिर से एक सेंटेंस खोजना पड़ेगा जिसमें हमको पता चलेगा ऑब्जेक्ट क्या है. ठीक है. तो इस तरह से हम इसको पेयरिंग कर सकते हैं कि दिस इज रेफरिंग टू व्हाट, दिस इज रेफरिंग टू व्हाट. सो मेरे पास सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो मैं दिस बोलूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीजें होंगी तो मैं दीज बोलूंगा. कोई चीज पास में होगी तब मैं दिस या दीज बोलूंगा, कोई चीज दूर होगी तो मैं दैट एंड दोज बोलूंगा. अब ये कुछ बेसिक हमारे लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमको यहाँ पे अप्लाई करने हैं. ठीक है. पॉजेसिव नाउन. पॉजेसिव नाउन का मतलब ही होता है कि इट शोज द पोजेशन ऑफ समथिंग. So say for example mine. So this laptop is mine. This laptop is mine. ये मेरा लैपटॉप है, ये मुझे बिलोंग करता है. It shows the possession. His. I bought, or I can say I bought this car from. No, it would be him then. I bought his car. I bought his car. तो ये कार किसकी थी? Actually उसकी थी. This belong to him. I bought it from him. सो इस तरह की चीजें होती. गिव इट टू हर. गिव इट टू हर मतलब ये चीज उसको दे दो. सो दे दो मतलब दिस विल गो टू दैट पर्सन. सो ये पजेस करेगी. अब तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं ये चीज किसको बिलोंग करती है, किसकी है, ये दर्शाते हैं. तो इट्स, देयर, हिज, हर, माइन. तो जब भी हम ऐसी चीजें देखेंगे तो मुझे इमीडिएटली ढूंढना पड़ेगा कि ये किस चीज की बात हो रही है जो किसके पास में है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं जिसमें हिम, हर, देम, अस यानी जिसके ऊपर एक्शन हुई है. जैसे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दो चीजें हमारे सेंटेंस में होती है. जो सब्जेक्ट होता है जनरली एक्शन इनिशिएट करता है और एक्शन होती है किसी ऑब्जेक्ट पर. सो आई स्कोल्डेड हिम. आई स्कोल्डेड, मैं सब्जेक्ट हो गया हूं, मैं एक एक्शन इनिशिएट कर रहा हूं. व्हाट इज दैट? स्कोल्डिंग. किसको? ऑब्जेक्ट है हिम, वो मेरा शिकार बना. आई स्कोल्डेड हिम. सो ऑब्जेक्ट क्या है? जब हमको ऐसे जब वर्ड्स हम देखते हैं हिम, हर, देम, अस, तो हमको ये देखना है कि हम किन चीजों की बात कर रहे हैं. वी विल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग दोस थिंग्स. ठीक है. अब देखिए इसके अलावा मुझे सेंटेंसेस में कई बार ऐसे समझ में आता है कि कुछ सिमिलर आइडियाज है या कोई कॉन्ट्रास्ट आइडिया है या कंपैरिजन है या एब्रिवेशन एंड एक्रोनिम का पेयर है. तो इन चीजों को भी हम केयरफुली देख सकते हैं. जैसे सिमिलर आइडियाज कैन बी फाउंड आउट व्हेन यू कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक आल्सो, फर्दरमोर, इन एडिशन, नॉट ओनली बट एक्सेट्रा. तो ऐसे वर्ड जब हमको दिखते हैं तो ये मुझे बताता है कि यार ये सेंटेंस के साथ में ही एक सिमिलर आइडिया वाला और पहला सेंटेंस मुझे कहीं चाहिए. ठीक है. सो ऑल्सो, फर्दरमोर का मतलब ये है कि मैं आगे और तुमको सिमिलर इंफॉर्मेशन दे रहा हूं. सो ऐसी इंफॉर्मेशन और कौन से सेंटेंस में हम उसको खोजेंगे. these two sentences will form a pair. कॉन्ट्रास्ट आइडियाज क्या होगा? बट, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, अदरवाइज, इन स्पाइट ऑफ एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन हार्ड वर्क I failed to score 90 percentile in CAT exam. अब ये कॉन्ट्रास्ट हो गया ना. हार्डवर्क जब हम पुट इन करते हैं तो वी जनरली एक्सपेक्ट अ सक्सेसफुल आउटकम. बट यहां क्या हो गया? इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन हार्डवर्क आई फेल टू स्कोर 90 percentile in CAT. तो ये हो गया कॉन्ट्रास्ट आइडिया. तो इन स्पाइट ऑफ अगर मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि हार्डवर्क डालने के बाद भी मैं नहीं कर पाया हूं, तो अब ये एक कॉन्ट्रास्टिंग सेंटेंस आया है. अब मुझे इससे पहले कोई एक ऐसा आइडिया दिखेगा जो बोलेगा कि नहीं हार्डवर्क से सक्सेस फॉलो करती है. एंड देन देयर विल बी अ कॉन्ट्रडिक्शन सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ पुटिंग इन हार्डवर्क आई फेल टू स्कोर 90 percentile. So there is some sentence that would actually be saying that if you put in hard work you would end up scoring good in CAT.
then there will be this sentence which is in spite of putting in hard work I could not get the results. तो कॉन्ट्रास्ट जब मैं देखता हूं तो मुझे एक ऐसा आइडिया चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है रिजल्ट नहीं मिला, तो मुझे ऐसा आइडिया चाहिए जो बोलेगा रिजल्ट मिला. सो दैट इज व्हाट आई विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर. क्लियर है? कंपैरिजन, as light as feather, as fast as cheetah, something of that sort. So हम इसको कंपेयर करते हैं किसी चीज को, इक्वली, सिमिलरली, लाइक, लाइकवाइज, एक्सेट्रा. तो ऐसी जब चीजें हम देखेंगे तो मुझे दिखता है कि कोई एक चीज की हमने बात की और फर्दर हम उसी टाइप की चीज की बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन हो जाता है. ठीक है? एब्रिविएशन एंड एक्रोनिम का पेयर. नाउ दिस इज अ वेरी क्लासिक थिंग दैट यू शुड रिमेंबर एंड ट्रस्ट में बहुत जगह तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. जैसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट फॉर्म है इसरो. तो क्या ये हो सकता है कि मेरे पहले के सेंटेंस में इसरो आएगा और बाद में कहीं तो भी दूसरे तीसरे सेंटेंस में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आएगा? No, sir. That will not be correct. That will not be correct. Yes. मैं शॉर्ट फॉर्म तभी यूज करता हूं जब मुझे पता होता है कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं. सो नेचुरल सी बात है कि अगर मेरे पास दोनों चीजें हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इसरो, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को पहले आना पड़ेगा, ये सेंटेंस को पहले आना पड़ेगा, फिर वो सेंटेंस जिसमें इसरो लिखा है वो फॉलो करेगा उसको. या तो इमीडिएटली फॉलो करेगा या समटाइम लेटर करेगा, लेकिन वो आएगा बाद में, वो उससे पहले नहीं आ सकता. ठीक है? तो ये कुछ नट्स एंड बोल्ट्स है हमारे पैराजंबल्स के, जिसको ध्यान में रखना है. और अब हम आगे बढ़ते हैं एक्चुअल CAT questions की तरफ. We done with the basic theory that is required to be able to master this particular area. Now time for a face off with VARC of CAT 19. कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुमको ये देखकर? बहुत सारे लोग हैं जो ये भी सोच रहे होंगे सर ये कैसी CAT ले ली आपने. See, this is the kind of feeling that CAT is communicating today. आज कैट हमारे लिए एक डरावना क्रिएचर है. आज कैट को हम ऐसे नहीं मानते कि एक पालतू जानवर है. आज तो हमको ऐसे लग रहा है कि ये कैट क्या चीज है जिसको हमको बेल करना है. Now before I venture into questions, we have seen there are certain questions that will look bouncers to you. Bouncers in the sense कि वो सेंटेंस क्या बोल रहा है, उसका क्या मतलब है, यही हमको समझ में नहीं आता. Now there is a possibility that you would get something similar to that in your CAT. तो पढ़ने के बाद अगर कोई लॉजिक एस्टैब्लिश हो रही है या थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन आप उसका कर पा रहे हो, तब आप उस पर टाइम स्पेंड करोगे. अदरवाइज इट विल बी वाइज टू से गुड बाय टू सच क्वेश्चंस. बिकॉज ट्रस्ट मी, आप बहुत टाइम स्पेंड करके अगर आप उसको क्रैक भी करते हो तो ये जरूरी नहीं कि वो राइट होगा. दूसरी अच्छी बात ये है कि क्योंकि ये नॉन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं तो आपको इनपुट करना है. अगर नई चीजें क्लिक कर रही है तो आप फिर अपना जो भी आपको ठीक लगता है वो इनपुट कर दे, बट वो क्वेश्चन के साथ बहुत टाइम वेस्ट ना करे. इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम स्लॉट 2 डिस्कशन कर रहे होंगे. आज के डिस्कशन में मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चंस बाउंसर्स है. कोई थोड़े क्रिटिकल एंड डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट हो सकते हैं, बट बाउंसर्स नहीं है. बाउंसर क्वेश्चंस क्या है ये मैं स्लॉट 2 का जब डिस्कशन करूंगा तब आपको बताऊंगा. एंड ट्रस्ट मी, यू रियली वुड स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये भी बड़ा रोल प्ले करता है कि मैं स्लॉट 1 में लिख रहा हूँ या 2 में लिख रहा हूँ. देयर कुड बी pretty good variation in the difficulty level. But they also have a mechanism of normalizing the scores. So अगर slot 2 में difficult आएगा पेपर तो जो भी है उसका कट ऑफ भी कम रहेगा और जब नॉर्मलाइज करेंगे तो वो परसेंटाइल में बराबर से मैप हो जाएगा. सो डोंट वरी टू मच अबाउट दैट एस्पेक्ट. ठीक है? तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कैट का एक्चुअल क्वेश्चन 2019 का. लेट अस सी हाउ प्रिपेयर्ड वी आर एंड वेयर वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. अब देखिए यहाँ पे इसको रीड करते हैं सबसे पहले हम. So people with dyslexia have difficulty with print reading and people with autism spectrum disorder have difficulty with mind reading. Now tell me one thing, when I read this, what is your expectation from this sentence? अगर मैं इसको opening sentence लेता हूं तो इसके further अब मुझे क्या बात करनी चाहिए? People with dyslexia have difficulty with print reading and people with autism spectrum disorder have difficulty with mind reading. ये टोन क्या दिखा रहा है आपको? व्हाट इज इट? प्रिंट रीडिंग और माइंड रीडिंग आपको लग रहा है कि मुझे उसके बारे में बात करना चाहिए? See, when we
सर एक जेनेरिक स्टार्ट है ये कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट लॉस का। ये जेनेरिक स्टार्ट है। मैं समझता हूँ ये ज्यादा स्पेसिफिक सेंटेंस है in terms of mentioning the name of the disease or the disorder, that is dyslexia is related with print reading and autism spectrum disorder is related with mind reading. Second, when I am saying people with dyslexia have difficulty with print reading and people with autism spectrum disorder have difficulty with mind reading, यहाँ पे मुझे जो टर्म्स लगते हैं इलाबोरेट होने चाहिए वो है व्हाट इज डिसलेक्सिया एंड व्हाट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ना कि व्हाट इज प्रिंट रीडिंग एंड माइंड रीडिंग, बिकॉज इट लुक्स लाइक दैट ऑथर ऑलरेडी नोज दैट प्रिंट रीडिंग हमको मालूम है, माइंड रीडिंग हमको मालूम है। हम जस्ट सेइंग डिसलेक्सिया जो होता है वो प्रिंट रीडिंग की डिफिकल्टी को दर्शाता है, सो यू नो व्हाट इज प्रिंट रीडिंग। So my normal expectation from the author would be that if I start my sentence with this, I further start talking about what is dyslexia and what is autism spectrum disorder. If that isn't happening, this question will keep lingering in my mind, what is dyslexia and what is autism spectrum disorder, when you are telling me what is print reading and what is mind reading. So ये examples है उन diseases के जो relate करते हैं print reading और mind reading के साथ। तो ये example है। So only when I am done with enough of my discussion on what is print reading and mind reading, can I then put in examples to further clarify what it means or how can I name these in some medical terminology. So इसलिए it doesn't look like a good opening sentence to me, because यहाँ पे दो नए terms introduce हो गए, dyslexia, autism spectrum. Print reading and mind reading are also new terms to me. But यहाँ पे जब मैं बोल रहा हूँ people with dyslexia have difficulty with print reading and people with autism spectrum, ना तो मुझे dyslexia मालूम है, ना मुझे autism spectrum, ना print reading, ना mind reading. अब आप ही बताइए इससे आगे क्या करना चाहिए? It will not be fair to say मैं dyslexia और autism को छोड़ देता हूँ या मैं print reading और mind reading को छोड़ देता हूँ. So to build my paragraph further from this point of view, from this point of time, would be very very difficult and challenging, because मैंने इतने सारे नए terms introduce कर दिया मेरे एक sentence में कि मुझे नहीं समझ में आ रहा तुमको क्या क्या समझाऊं मैं. So therefore I won't really want to eagerly start sentence, because broad framework में मुझे mind reading, print reading, mind reading, print reading सब जगह दिख रहा है. So I would rather keep this aside and let it qualify as an example of what print reading and mind reading would mean in medical terms. So एक बार ये sentence को हम सिर्फ understand कर लेते और इसको side में रखते हैं. तो यहाँ पे देखिए जब मैं इस particular sentence को देख रहा हूँ तो मेरे catch words यहाँ पे रहेंगे dyslexia that relates to print reading and autism spectrum disorder with mind reading. दूसरा सेंटेंस आप देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट इज माइंड रीडिंग. आवर कैपेसिटी टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एंड अदर्स एज हैविंग बिलीव्स, डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स. अब ये जो इलाबोरेशन है, आवर कैपेसिटी टू थिंक ऑफ आवरसेल्व्स, व्हाट इज इट डिफाइनिंग? लॉस ऑफ कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट और माइंड रीडिंग? Mind reading. Has to be mind reading, because it is talking about having a capacity to do something. So loss of cognitive instinct और नहीं हो सकता ये मेरा, because then it would say my inability to do something. If you're talking about loss of some instinct, then you would have talked about loss of your capability to do something or your inability to do something. So now since I'm talking about capacity to think of ourselves and others as having beliefs, desires and thoughts and feelings, it only means कि mind reading उस चीज का नाम है जिसमें मैं दूसरों में भी भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती है, उनके अपने थॉट्स होते हैं, ये समझता हूं. इस चीज को हम बोलते हैं माइंड रीडिंग की एबिलिटी. तो जिस बंदे के पास माइंड रीडिंग की एबिलिटी नहीं होगी, इसका मतलब ही विल बी इनसेंसिटिव टुवर्ड्स अदर पीपल. वो इनसेंसिटिव हो जाएगा दूसरे लोगों के प्रति, बिकॉज उसको ये समझेगा ही नहीं कि आपकी अपनी कुछ भावनाएं हैं, आपके अंदर फीलिंग्स है. वो आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह देखेगा एंड ही विल ट्रीट यू लाइक एन ऑब्जेक्ट. सो इफ देयर इज अ लॉस ऑफ कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट, which is also called loss of mind reading, ability to do mind reading, then you will start treating people as an object. ये क्लियर है यहाँ पे हमको?
So what is mind reading? Mind reading is our capacity to think of ourselves and others as having a belief. तो सेकेंड सेंटेंस में जब मैं ये चीजें देख रहा हूं तो यहां मुझे दिखा कि इट इज एन एग्जाम्पल. व्हाट इज एन एग्जाम्पल? माइंड रीडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लार्जर पिक्चर विच इज लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट. जब हम उसको समझने की कोशिश करते तो उसके अंदर हम माइंड रीडिंग की बात करते हैं. आर वी गुड विद दिस? माइंड रीडिंग इज अ सब क्लास ऑफ लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट. ये सब क्लास है. Yes, sir. माइंड रीडिंग कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट के अंडर में आ रहा है, राइट? माइंड रीडिंग के अंडर में कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट नहीं आएगा. आर वी क्लियर विद दिस? Yes, अगर sir. मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं तो हम लार्जर टू स्मॉलर में जाएंगे. अगर मैं माइंड रीडिंग के बारे में बात करना शुरू कर दूं और बीच में ही कहीं बोलूं कि कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट के अंडर में माइंड रीडिंग आता है, हाउ वुड इट साउंड? वेरी वेग. ऐसा लगेगा हम फ्लो को तोड़कर बात कर रहे हैं. तो नेचुरली कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट के अंदर में माइंड रीडिंग आ रहा है. फिर माइंड रीडिंग को मैं फर्दर इलैबोरेट कर रहा हूं, फिर उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं. दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक. तो यहां मुझे ये समझ में आ रहा है कि लार्जर पिक्चर इज कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट and mind reading is a subset of cognitive instinct. Are we on the same page on this? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So mind reading has been introduced here as an example. तो mind reading के बारे में देखो, मुझे यहाँ कुछ information मिल रही है कि what is mind reading. स्टार्टिंग में हमको दो बीमारियों के नाम मिले और वो किस चीज से रिलेटेड है वो मिला. सो इट इज टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ इलनेस और सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, द मेंटल डिसऑर्डर्स दैट अ पर्सन वुड हैव एंड व्हाट वुड दैट बी कॉल्ड. थर्ड में मैं देख रहा हूं माइंड रीडिंग लुक्स. अब माइंड रीडिंग को कोई चीज से कंपेयर किया गया है. सो कंपैरिजन तो तब आ जाएगा जब मैं पहले उसको डिस्क्राइब करूंगा कि व्हाट इज माइंड रीडिंग. पहले मैं माइंड रीडिंग को डिस्क्राइब करूंगा, फिर मैं उसको कंपेयर करूंगा किसी चीज से कि इट इज लाइक दिस. करेक्ट? सो ये बात तो श्योर है हमारी कि माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी. अ स्किल वी नो फॉर श्योर इज नॉट इन आवर जीन्स. क्या इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? व्हाट डज इट मीन? इसको डिकोड कर सकते हैं हम? इस सेंटेंस क्या बता रहा है बताइए. So, like by birth, we are not literate. We have to learn. So, like similarly, mind reading, we will learn it by time. एग्जैक्टली, वेरी करेक्ट, ऑसम, बहुत अच्छी बात है. सी दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू गाइस कि जब हम इन चीजों को देख रहे हैं तो आप उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करें. हाथ ऊपर मत कर दीजिए देख के कि अरे यार ये मेरे बस का नहीं है तो समझ में नहीं आएगा. कोशिश करिए, 2 बार 3 बार पढ़ने से समझ में आएगा. माइंड रीडिंग लुक्स इंक्रीजिंगली लाइक लिटरेसी. ये लिटरेसी की तरह हमको दिखता है. लिटरेसी के बाद कॉमा देके बताया, मतलब लिटरेसी की हम बात करें. अ स्किल वी नो फॉर श्योर इज नॉट इन आवर जीन्स. लिटरेसी हमारे जीन्स में नहीं होती. सारे के सारे लोग बड़े हो जाते हैं और अपने आप लिटरेट नहीं हो जाते. लिटरेसी का मतलब है पढ़ना लिखना सीखना. तो somebody is not going to school and taking a formal education will not become literate just because he is born. ये हमारे जीन्स में नहीं है, इसको अक्वायर करना पड़ता है अलग से. तो माइंड रीडिंग भी वैसी ही चीज है. ये बाय बर्थ तुम्हारे अंदर नहीं होगी, इसको तुम अक्वायर करते हो. और माइंड रीडिंग जैसे हमने बताया यहाँ पे कि हम समझते हैं कि लोगों में बिलीव्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, थॉट्स होती है, फीलिंग्स होती है. ये चीजें जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम इसको अपने अनुभव से समझने लगते हैं. डायरेक्ट तुमको ये नहीं समझ में आता कि उसको फीलिंग्स है. तुमको तब समझ में आता है जब तुम्हारी अपनी फीलिंग्स हर्ट होती है तो तुमको मालूम पड़ता है अरे यार वो बंदे की भी फीलिंग्स है. Because you got hurt at some point of time because XYZ thing. So now you understand कि ऐसी चीज करने से दूसरा बंदा हर्ट फील करता है तो उसकी फीलिंग्स है. So you learn this over the time, but this needs to be acquired. ये by birth अपने आप नहीं आपके अंदर आ जाता है. You need to learn it, you need to acquire it. Is all that we see.
तो यहाँ पे हमने फिर से अबाउट माइंड रीडिंग मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन माइंड रीडिंग को आप कंपेयर किया गया किसी चीज से, तो इसका मतलब है माइंड रीडिंग को जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे ऑलरेडी माइंड रीडिंग के बारे में पहले ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, तभी मैं उसको कंपेयर करूंगा किसी चीज से। तो ये बात श्योर है कि 2 में मुझे माइंड रीडिंग क्या है, इट इज आवर कैपेसिटी करके फॉर्मली उसको डिफाइन किया गया है। So having understood what is mind reading, I can then go ahead and start looking at it from the other perspective. Okay. So mind reading हमने यहाँ पे देखा has been compared with something, but for me to compare mind reading with something, I should first know what is mind reading. Now that has been explained in 2. So 2 हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए फर्दर जब मैं जाता हूँ तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रिंट रीडिंग लाइक माइंड रीडिंग। अब प्रिंट रीडिंग को इन्होंने माइंड रीडिंग के साथ कंपेयर किया है। सो ये सेंटेंस नेचुरली मेरा कभी भी पहले नहीं आ सकता जब तक मेरा माइंड रीडिंग मुझे क्लियर ना हो जाए, बिकॉज प्रिंट रीडिंग नाउ हैज बीन कंपेयर्ड विद माइंड रीडिंग। सो सबसे पहले व्हाट इज माइंड रीडिंग, फिर माइंड रीडिंग को किसी चीज से कंपेयर करके समझाना, दिस इज लाइक गिविंग एन एग्जांपल। देन प्रिंट रीडिंग को माइंड रीडिंग से कंपेयर करना, because it can't happen otherwise if I really don't know what is mind reading। आप print reading like mind reading मेरे को कुछ भी समझाओगे तो मुझे क्या समझेगा कि what is print reading। when you are saying print reading like mind reading varies across cultures, तो मुझे क्या समझ में आएगा अगर मुझे mind reading ही नहीं पता कि वो कैसे ऑपरेट होता है, तो मैं ये क्या समझूंगा कि print reading looks similar to mind reading and how it impacts। so for you to compare print reading with mind reading, first you will have to introduce mind reading and explain that term। Are we on the same page? Yes, sir. ठीक है। So this is depends heavily on certain parts of the brain। ये across culture हो रहा है, इसलिए इसमें culture का कोई लेना देना नहीं है। It has got something to do with the brain and is subject to developmental disorders। तो प्रिंट रीडिंग एंड माइंड रीडिंग ये दोनों भी चीजें जो है ये कोई ना कोई डिसऑर्डर में रिजल्ट करती है, is what it says, and is subject to developmental disorders। so जैसे जैसे कोई disorders आपके अंदर डेवलप होंगे वैसे वैसे ये प्रिंट रीडिंग एंड माइंड रीडिंग के इश्यूज आपको आएंगे, because it has got something to do with the brain and not culture। so it can be seen anywhere, but जब भी आपको brain related issues developmental disorders आएंगे, you would have issues with print reading, you will have issues with mind reading। now what are those issues and what are these disorders that we are talking of is what I can see in statement 1, where dyslexia has been defined as in problem associated with print reading and autism spectrum as in disorder pertaining to mind reading। तो इस पर्टिकुलर तर्ज पे अगर हम जा रहे हैं तो हमको यहाँ पे दिखता है कि जो हमारा ऑर्डर आना चाहिए, इट शुड बी 2 एज इन ओपनिंग सेंटेंस, बिकॉज लॉस्ट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट के अंडर माइंड रीडिंग आ रहा है और उसके आगे हमने कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट के बारे में बात करी ही नहीं है। तो क्योंकि हम कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट की बात नहीं कर रहे तो ना तो ये मेरा क्लोजिंग एग्जाम्पल हो सकता है, ना मैं इसको बीच में ला सकता हूँ, क्योंकि द मोमेंट आई टॉक अबाउट कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट आई हैव टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। तो स्टार्टिंग में मेरे पास चॉइस था कि मैंने कॉग्निटिव इंस्टिंक्ट का सबसेट करके माइंड रीडिंग को इंट्रोड्यूस किया और उसके आगे फिर मैं सिर्फ माइंड रीडिंग की बात करता रहा। सो देयरफॉर 2 विल क्वालिफाई बेटर टू बी एन ओपनिंग सेंटेंस देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये एक जेनेरिक का सब पार्ट है। उसके बाद 3 में हमने माइंड रीडिंग को फर्दर इलैबोरेट किया है। 4th में क्योंकि माइंड रीडिंग पूरा हमको समझ गया कि क्या होता है, अब हमने प्रिंट रीडिंग को माइंड रीडिंग की तरह ही है ये बोल सकते हैं, क्योंकि अब माइंड रीडिंग क्या हमको पता है। फर्दर ये बोल रहे हैं कि दोनों चीजें आपको धीरे धीरे तब मालूम पड़ेगी जब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होंगे आप में। सो व्हाट आर दीज डिसऑर्डर्स दैट वी आर टॉकिंग ऑफ,